Welcome you students, this lecture is based on pollination. We know very well that pollination is a crucial event in case of sexual reproduction in plants. So in this particular topic, we have to deal with the definition, its types, significance, advantages, disadvantages, different types of pollination, different agencies which are going to participate in pollination, and of course the contrivances for pollination. So let's deal all these things one by one. Initially, we have to define the act of pollination, and we can define in simplest way that is the act of transfer of pollen grains. Pollen grains are going to transfer from where to where? From anther to stigma. From anther to stigma, right? So, question arises now whether this transfer is occurring within same flower or two different flowers born on same plant, or two different flowers born on two different plants, whether they belong to same or different species. Okay, that everything is to be categorized. That's how we can define this particular process in two different terms, that is self and cross pollination. So we can classify pollination for the sake of understanding into two, that is self pollination and of course cross pollination. Okay, so we will try to understand this concept with the help of simple diagrammatic representation sketch. Okay, so cell pollination is the transfer of pollen grain from anther to stigma within same plant, of course in flowers of same plant, right? So here cell pollination is of two types, autogamy and geitonogamy. Autogamy and geitonogamy. Okay, geiton is neighbor. So autogamy is the act of transfer of pollen grains from anther to stigma in same flower. Say this is the flower, okay, having both the sexual whorls, androecium and gynoecium. So we can mark such kind of transfer within same flower, right, like this. So it is said to be autogamy. So what is happening in autogamy? In autogamy, transfer is occurring within same flower. So that is the purest type of pollination, of course self pollination, as found in pea. Okay, in pea plant we can easily observe such transfer of pollen grains, a ready-made transfer. We can say no need of such agency like insects, birds, wind, water. Okay, so it is automatic transfer like this, autogamy. That is the purest category we have. So here, geitonogamy is the process of transfer of pollen grains from anther to stigma, but a little bit change you can find here is two different flowers are participating. Here, single flower, right? Two different flowers, but plant remains same. एक ही प्लांट में अगर ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर आप प्लांट चेंज करोगे तो वो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन. अगर प्लांट एक है तो सेल्फ, और अगर प्लांट दो डिफरेंट है तो वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन. सो गeitonogamy मीन्स process of transfer of pollen grains from anther to stigma of two different flowers born on same plant. I repeat, same plant. Okay, and that is geitonogamy as found in Cucurbita. Okay, in various species of Cucurbita you can find that. So cross pollination is process of transfer of pollen grains from anther to stigma between two different flowers born on two different plants, just like this as shown in the diagram. You can see right like this. So here two different plants are participating. It means it is cross pollination. ठीक है, आपने plant change कर दिए. Say this is the A plant and this is the B plant. Okay, and process of transfer is occurring in between these two plants and two different flowers. Of course, it is said to be xenogamy. Okay, इसको आप कह सकते हो xenogamy, just like this, and it is found in most of the plants as agencies are going to play important role in such transfer of pollen grains, but they are similar plants. It means they belong to same species. But if everything is different, then it is termed as hybridization. So what is hybridization? Hybridization is the process of transfer of pollen grains, either natural or artificial, by different scientists, agronomists, horticulturists. Okay, so here hybridization is nothing but process of transfer of pollen grains from anther to stigma, two different flowers born on two different plants of two different species.
जहाँ सारी चीजें डिफरेंट होती है वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अगर स्पीशीज सेम है दो प्लांट का तो ये जेनोगैमी कहलाता है, और अगर एक ही प्लांट है बट फ्लावर चेंज है तो ये गिचनोगैमी कहलाता है, और अगर एक ही फ्लावर है एक ही प्लांट ऑफ कोर्स रहेगा तो ये है ऑटोगैमी। सो वी कैन से self and cross pollination are two major categories of pollination, and here we have to understand its advantages and disadvantages. Okay, let's see one by one. So as far as self pollination is concerned, we know very well that this particular pollination is characterized by some advantageous features, of course. So let's say self pollination is advantageous, but for which respects? So let me tell you one by one. Suppose here self pollination is occurring, okay, so which should be the benefit to the plant? Say number one, here flowers, plants, जो भी plants या flowers, pollen grains, stigma, ठीक है, anthers, okay, ये सारे प्लांट के एंटिटीज जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन में तो इनमें किस तरह के चेंजेस आते हैं, एडेप्टेशंस, ओके, या फिर आप कह सकते हो ये प्लांट के लिए किस तरह बेनिफिशियल है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन इज मोर श्योर मेथड, ठीक है, कंपेयर्ड टू क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज मोर श्योर मेथड। हियर देयर इज इंश्योरेंस ऑफ पॉलिनेशन as plants are bisexual, okay, they are characterized by bisexual flowers mostly. So self pollination is more sure method as there is no need of pollinating agencies, no need of pollinating agencies for the sake of pollination. यहाँ पे किसी एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे बायोटिक हो या बायोटिक हो, ठीक है, यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंसीज का डिमांड नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें इंश्योर्ड है, ओके, सो इट इज मोर श्योर मेथड comparatively, okay, that is the comparison with cross pollination. Flowers, plants are conserving their energy by controlling their productions of colors, fragrance and nectars, okay, so there is no need to produce all those attractive features to attract insects or birds for the sake of pollination. No need to produce color, fragrance and nectar, of course, for the sake of invitation to pollinating agencies. तो यहाँ पे आपको किसी एजेंसी को बुलाना तो है नहीं, ठीक है, इसीलिए ऑफ कोर्स कलर, नेक्टर, फ्रेग्रेंस, इन चीज़ों का प्रोडक्शन ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, और इस तरह यहाँ पर एनर्जी प्लांट सेव करते हैं, thus conserve energy conservation is there. So energy get conserved by self pollination because there is no need to produce color, nectar or fragrance to invite those agencies. Then third important feature for this kind of pollination is, as we know that insects and birds visit flowers in specific seasons, okay, but it is season dependent or independent, season independent, okay. So pollen agencies are inviting for the sake of pollination in cross pollinated plants, but here there is no need to invite such things, okay, that's how it is independent to agencies and independent to, we can say, specifically seasons, okay. So that is more sure method and conservative method as far as self pollination is concerned, but it is suffered by one major drawback, and that is, what is that, what should it be? That is variation varieties. As single plant is participating in pollination, there are less chances of variants, okay. यहाँ पे वेरिएशन आने के निग्लिजिबल चांसेस होते हैं या फिर आते ही नहीं है वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स सेम प्लांट का यूज होता है, एंड दैट्स हाउ इट फेल्स टू ब्रिंग वेरिएशंस। तो इसका बहुत ही मेजर ड्रॉबैक आप कह सकते हो, ड्रॉबैक, इट फेल्स टू ब्रिंग वेरिएशंस, और अगर वेरिएशंस नहीं आते हैं
तो फिर यहाँ स्कोप नहीं रह जाता है फॉर एवोल्यूशन पर्पस। ओके, तो एवोल्यूशन अगर चाहिए तो एवोल्यूशन तो मस्ट है, राइट। फॉर वी कैन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट देयर इज अ नीड ऑफ gradual, slow but gradual evolution, right? So we can say here it fails to bring variations, and that's how most of the plant tend to pollinate with the help of agencies, that is they show cross pollination, right? Cross. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन में एक तो एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी की यहाँ पे कंजर्वेशन होता है, सेव होती है, राइट। क्योंकि कुछ आपको कलर नेक्टर वगैरह बनाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस तरह कंजर्व होगा एनर्जी, राइट। और दूसरी चीज़ यहाँ पर डिपेंड नहीं रहना है प्लांट्स को किसी एजेंसी पे, दैट्स हाउ इट इज मोस्ट श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन। ओके, और सब कुछ यही है, नाइट्रोजन यहाँ है, गैनोशियम यहाँ है, और सारी चीज़ें एक ही जगह अवेलेबल है, तो इसीलिए इसका इंश्योरेंस थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की, और क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो आप समझ लो कि जो एडवांटेजेस सेल्फ पॉलिनेशन के हैं वो डिसएडवांटेजेस क्रॉस पॉलिनेशन के होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। और जो ड्रॉबैक सेल्फ पॉलिनेशन का है कि वेरिएशन नहीं लाता है, तो वो एडवांटेज होगा क्रॉस पॉलिनेशन का, दैट्स ऑल। सो क्रॉस पॉलिनेशन इसका अगर आपको बताना है एडवांटेज, ओके, तो आप बताओगे कि ये वेरिएशंस लेके आते हैं, ओके, इट ब्रिंग वेरिएशन एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज क्रॉस पॉलिनेशन शोज, इट ब्रिंग वेरिएशंस, वैरायटीज। तो ये जो वेरिएशंस आते हैं इससे एवोल्यूशन का स्कोप काफी बढ़ जाएगा, ओके, और प्लांट को सस्टेन करने में काफी हेल्प मिलेगी। दैट्स हाउ प्लांट टेंड टू क्रॉस पॉलिनेट, ओके, एंड दैट्स हाउ दे शो सम एडेप्टिव फीचर्स कॉल्ड कॉन्ट्रीवेंसेस, ओके। तो इट ब्रिंग वेरिएशंस एंड दैट इज एसेंशियल फॉर द सेक ऑफ एवोल्यूशन, यही इसका एडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज अगर आपको मेंशन करना है, ओके, तो आप कह सकते हो डिसएडवांटेज में कि यहाँ पे प्लांट्स का जो इंश्योरेंस है, ठीक है, श्योरिटी है, वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इज मोस्ट श्योर मेथड ऑफ कोर्स, ठीक है, बट ये उतना इंश्योरेंस नहीं दिखाएगा। इसका सिंपल मीन है कि इसको डिपेंड रहना है किसी एजेंसी पे, जैसे कि एबायोटिक हो या बायोटिक हो, ठीक है। यहाँ पे एजेंसी का रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहाँ प्लांट्स अलग है और ट्रांसफर के लिए एजेंसी का नीड होता है ऑफ कोर्स, सो इट हैव टू डिपेंड on agency, it need agency, okay, of pollination, and that's how it is less sure method comparatively, ठीक है, ये less sure method है, आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे एनर्जी का नीड होता है, ठीक है, एनर्जी इज कंज्यूम्ड, वहां पे एनर्जी कंजर्व होती है और यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है, मतलब एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। एज फ्लावर्स हैव टू प्रोड्यूस अट्रैक्टिव कलर्स, वी कैन से प्लांट्स को ऐसे फ्लावर बनाने हैं जिसमें कलर्स होता है, नेक्टर होते हैं, ठीक है, और साथ में उसमें फ्रेग्रेंस भी होता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको बुलाना पड़ेगा इंसेक्ट्स को, यहाँ पे बुलाना पड़ेगा डिफरेंट एजेंसीज को इंक्लूडिंग बर्ड्स और एनिमल्स, ठीक है ना, तो इसके लिए उन्हें खर्च करना पड़ेगा और ये एक्सपेंसिव मेथड है, इसीलिए ये उसका ड्रॉबैक आप कह सकते हो, ठीक है। सो जो एडवांटेज है सेल्फ के वो डिसएडवांटेज है क्रॉस के, एंड वाइस वर्सा, ओके। तो आपने देखा सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल है प्लांट्स में, ठीक है। तो इसके हमें पढ़ने होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंसीज, ठीक है ना, कौन कौन से एजेंसीज हो सकते हैं, एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन। सो एजेंसीज इन द सेंस आपको यहाँ पे बताने हैं वो एजेंट्स जो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वेदर इट इज ए बायोटिक और बायोटिक। तो सबसे मेजर क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका, दो क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया आपके सामने आ जाते हैं, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली दैट इज abiotic agents are non-living and biotic agents are of course living, ठीक है। abiotic agencies में यहाँ पे होता है wind and water, ठीक है, wind and water। और biotic agencies में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि common insects इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बर्ड्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अदर एनिमल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना, अदर एनिमल्स जो कुछ भी हो सकते हैं इंक्लूडिंग बैट्स, स्नेल्स, स्नेक और इवन ह्यूमंस, ठीक है, सब पार्टिसिपेट करते हैं, कॉल्ड ज़ूफिलाई, ठीक है, इस तरह आप कह सकते हो पॉलिनेशन। सो हियर एजेंसीज में भी बायोटिक एज वेल एज बायोटिक, तो इसको समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे abiotic agencies means non-living agencies which are participating in pollination, ठीक है। तो abiotic agency में हम पहले पढ़ते हैं नंबर 1 एनिमोफिलाई, ठीक है। एनिमोफिलाई इन द सेंस
pollination by wind. Pollination by wind, so it is commonly called wind pollination. ठीक है, तो यहाँ पे जो pollination होता है उसमें मेन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है विंड, सो इट इज कॉल्ड विंड पॉलिनेशन, राइट. ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड. ओके, तो हमें यहाँ पे समझने होंगे कुछ इंपॉर्टेंट एडेप्टिव फीचर्स, एडेप्टेशंस फॉर द सेक ऑफ विंड पॉलिनेशन. यहाँ प्लांट, फ्लावर्स और पोलन ग्रेन, स्टिग्मा, एंथर्स, ये सारे कैसे डिजाइन होते हैं. ओके, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ हम करेंगे. ठीक है, सो डिफरेंट एडेप्टेशंस एसेंशियल फॉर एनिमोफिलाई. या कोई प्लांट अगर विंड पॉलिनेशन करता है, ओके, तो उसमें कौन से फीचर्स आप देख सकते हो वो यहाँ आपको मेंशन करने होंगे. ठीक है, यहाँ हाईलाइट करते हैं वन बाय वन. तो अगर आप देखो तो ये प्लांट्स जो होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं बाय विंड, तो ये काफी इनकॉन्स्पिक्यूअस फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है ना, तो आप देखिए फ्लोरल एडेप्टेशंस में जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होंगे. फ्लावर्स आर इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब नॉन डेकोरेटिव फ्लावर्स. तो इसमें फ्लावर्स में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा. सिंपल सोबर फ्लावर्स आप देख सकते हो इन प्लांट्स पे आपको दिखाई देंगे. ठीक है, ये होते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस, नॉन डेकोरेटिव एंड मोस्टली सॉलिटरी. क्योंकि यहाँ पे ऐसे बंच ऑफ फ्लावर्स, बुके, जिसको इन्फ्लोरेसेंस आप कहते हो, ये आपको रेयरली दिखाई देगा. इसका मतलब है फ्लावर्स सॉलिटरी होंगे. फ्लावर्स आर इनकॉन्स्पिक्यूअस, ओके, सॉलिटरी, राइट, विदाउट नेक्टर. उसमें ना नेक्टर होगा, ना उसमें कलर होगा. ठीक है, ना उसमें फ्रेग्रेंस होगा, राइट. तो आप कह सकते हो फ्लावर्स कैसे हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस, नॉन डेकोरेटिव, नॉन शोवी फ्लावर्स आर बोर्न टू सच प्लांट्स व्हिच आर सेड टू बी एनिमोफाइलस प्लांट. ठीक है, ऐसे प्लांट को जो एनिमोफिलाई दिखाएगा, पॉलिनेशन दिखाएगा बाय विंड, तो उसका नाम होगा एनिमोफाइलस प्लांट. जैसे कि आप देख सकते हो इन मोस्ट ऑफ द ग्रासेस. ठीक है ना, ग्रासेस में तो सबसे कॉमन पॉलिनेशन यही आपको दिखाई देगा, जिसका मतलब है विंड पॉलिनेशन. तो फ्लावर्स होते हैं टर्मिनल. ठीक है, फ्लावर्स होते हैं टर्मिनल सो दैट इट कैन इजीली रिसीव पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एयर और विंड. ठीक है ना, तो यहाँ पे दूसरी चीज आप लिखोगे, फ्लावर्स आर टर्मिनल. ठीक है, फ्लावर्स कैसे होते हैं, फ्लावर्स आर टर्मिनल और एंड स्मॉल. फ्लावर्स ऑफ कोर्स स्मॉल होते हैं. ठीक है, वो बॉर्न होते हैं एट द एंड टिप. ठीक है, आप कह सकते हो एट द एपेक्स. फाइकल फ्लावर्स, टर्मिनल फ्लावर्स, और ऑफ कोर्स छोटे होते हैं. ठीक है ना, ताकि अगर उन्हें पोलन ग्रेन्स लिबरेट करने और डिहाइस कराना अपने एंथर्स को, तो वो इजीली स्विंग होने चाहिए. वर्साटाइल एंथर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, राइट. सो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एडेप्टिव फीचर्स वी कैन से हाउ एंथर्स आर डेवलप्ड. तो इसमें जो एंथर्स आप देखोगे, एंथर्स कैसे होंगे, एंथर्स आर वर्साटाइल. वर्साटाइल एंथर ऐसे 360 डिग्री रोटेट हो सकते हैं, जस्ट लाइक दिस. अगर आप देखो तो ऐसे इस तरह का ये स्मॉल पॉइंट पे अटैच होगा ये एंथर इस फिलामेंट को, और ये ऐसे स्विंग हो जाएगा 360 डिग्री with the help of wind, so that it can dehice a lot of pollen grains. ठीक है ना, into the wind. Anthers are versatile, means they can rotate 360 degree, right? And here pollen grains, जो pollen grains होते हैं, pollen grains are small sized. pollen grains काफी छोटे होते हैं. ठीक है, आप समझ गए. और इसमें एक important चीज है जो आपने याद रखनी है, वो tremendous number में होते हैं. pollen grains are small sized, numerous, बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस. ओके, और ये होते हैं मोस्टली ड्राई, राइट, और रफ, ड्राई एंड रफ. ठीक, ये समझ लेना आपने. उसका जो एग्जाइन होगा ये काइनुलेट होगा या थोड़ा रफ होगा, सो दैट इट कैन इजीली लैंड ऑन स्टिग्मा जो फेदरी होता है. ठीक है, तो भी चीज आप यहाँ लिख सकते हो. इनके जो स्टिग्मा होंगे फ्लावर्स में, स्टिग्मा इज मोस्टली फेदरी. ठीक है, इसमें फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे टू रिसीव पोलन ग्रेन. ओके, तो पोलन ग्रेन रिसीव करने के लिए ये काफी मॉडिफाइड किया गया इसमें स्टिग्मा. ओके, तो जो टर्मिनल होता है और वो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को. तो पोलन ग्रेन यहाँ पे छोटे होते हैं, राइट, बहुत ही लाइट वेट होते हैं. पोलन ग्रेन्स जो यहाँ से निकलेंगे ये कैसे होंगे, लाइट वेटेड. तो इसमें ऑफ कोर्स उनका वेट बहुत ही कम होना चाहिए, सो दैट दे कैन इजीली फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंड अप टू द टारगेट्स. तो टारगेट इनका क्या है, इनका टारगेट है स्टिग्मा. ठीक है, जो सिमिलर टाइप के ग्रास प्लांट्स का होना चाहिए. तो ये पॉलिनेशन होता है मोस्टली इन ग्रासेस, जैसे कि व्हीट, राइस, मेज, बार्ली. ठीक है, आप समझ गए.
इस टाइप के जो ग्रास प्लांट्स है ग्रामिनी फैमिली को बिलोंग करते हैं, उन प्लांट्स में आपको ये पॉलिनेशन काफी इजीली दिखाई देगा और एडेप्टिव फीचर्स काफी स्ट्रांग है। तो आप देख सकते हो जैसे कि कॉर्न है, राय है, व्हीट है, राइस है, ओके, बार्ली, ओट, इवन पाम प्लांट्स में भी इस टाइप का पॉलिनेशन आपको दिखाई देगा। सो दैट इज पॉलिनेशन बाय विंड। तो विंड पॉलिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि यहाँ पे फ्लावर्स नॉन कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, ठीक है। ग्रास फैमिली में ऐसे आपको प्लांट्स कॉमनली मिल जाएंगे जो एनिमोफाइलस होते हैं पॉलिनेशन बाय विंड, ठीक है। तो हमने देखा कि फ्लावर से टर्मिनल है, नॉन शोवी है, ना कलर है उसमें, ना फ्रेग्रेंस है, ना नेक्टर है, और साथ में जो एंथर्स होते हैं वो एक्सट्रोज और वर्साटाइल होते हैं ताकि आसानी से वो डिवाइस करा पाए, डिवाइस कर सकते हैं वो अपने सारे पोलन ग्रेन्स इनटू द विंड। और सारे पोलन ग्रेन्स आप देख सकते हो ड्राई है, स्मॉल, लाइट वेटेड है, बट न्यूमरस है। Some plants are produce millions of pollen grains, okay, for the sake of fruitful pollination, especially in grass family. तो ये जो आप देख रहे हो इन ग्रास फैमिली में जो एंथर्स है वो वर्साटाइल है, स्टिग्मा ये फेदरी और रिसेप्टिव है, और इनका मैचुरेशन ये खास टाइम पे होता है जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर्ड होते हैं, तो उस वक्त स्टिग्मा भी मैच्योर्ड होता है। और स्टिग्मा को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि विंड के साथ आने वाले पोलन ग्रेन्स ये प्रॉपरली लैंड कर पाए ऑन स्टिग्मा। बट यहाँ पे एक चीज़ ये एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो सकती है और वो है पोलन एलर्जी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के एलर्जिक डिसऑर्डर्स है फीवर जैसे, एस्थमा जैसे, ठीक है, ये इसमें देखने को मिल सकते हैं। पोलन एलर्जी ये एक मेजर कंसर्न हो सकता है एज पोलन ग्रेन्स आर वेरी टाइनी एंड मे एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स एज वेल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप याद रखिए जो हमने मेंशन किए थे यहाँ पे, ठीक है। ग्रास फैमिली के कोई भी एग्जांपल, व्हीट, मेज, जवार, राय, ओट, barley, palm, okay, ये सारे examples आप लिख सकते हो। So if there is a note on Anemophila, you will easily write the matter, okay, and entrance point of view that is so significant, okay. So hope you got about Anemophila. The rest of the content will be continued in next lecture. Thanks for watching.